Good morning, students. Hope you will be fine at your respective places. Last time we were discussing the population ecology. We have we have tried to define the term population, and we have defined it as the total number of individuals of a species in a specific geographical area, and the members of the species they can interbreed under natural conditions in order to produce the fertile offsprings, and then each of them, and then this population it can function as a unit of biotic community. So what we have discussed in the earlier video, we have discussed the definition of population. फर्स्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फर्स्ट वन. देन वी हैव started some rather these characteristics of the population. We have discussed the birth rate, या जिसको हम कहते हैं और नेटैलिटी, जिसको हमने डिफाइन किया. इट इज़ द नंबर ऑफ द बर्थ्स पर, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन पर ईयर. और हम इससे ये देखते हैं कि बाय दिस बर्थ रेट जो पॉपुलेशन साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. सेकंड जो हमने उस रोज पढ़ा, वी हैव डिस्कस्ड दिस डेथ रेट, and this death rate, or which we call as a mortality. We have defined that death rate as the number of, it can be expressed as the number of deaths per 1000 individuals of a population per year, or simply you can say it is the opposite of the birth rate. It causes, it decreases the population size and population density. We have also discussed the dispersal. डिस्पर्सल में हमने क्या डिफाइन किया? वी हैव फाउंड, वी हैव रादर डिस्कस्ड दैट द पॉपुलेशन साइज जो है इट इज़ नॉट स्टैटिक बट इट इज़ डायनेमिक. दैट मीन्स इट चेंजेस फ्रॉम time to time, and it changes due to the movement, due to the migration of the individuals from one time, or from one time, yeah, they migrate ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. ये आमतौर देखा गया है कि जब कोई इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड विद इन द पॉपुलेशन, इट इज़ कॉल्ड एज द इमिग्रेशन. या कभी कभार हम ये देखते हैं कि व्हेन द individuals they leave the population, then it is called as the immigration. So we will see immigration when they enter the population, it increase the population size, and density when they leave the population, then immigration it decreases the population size and density. Today we are going to discuss one more thing, that is the one more characteristic, that is the population size. How we can define the population size? Population size can simply, it indicates, it gives us, it can be defined as the total number of organisms, total number of organisms of a specific species which are present in a area at a particular time. कि कितने ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशीज के विच आर प्रेजेंट इन एन एरिया, विच आर प्रेजेंट इन ए जियोग्राफिकल एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम. नाउ अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज है इंडिविजुअल्स की, या पॉपुलेशन साइज ऑफ ए स्पीशीज जो है, इट वेरीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज. इट ऑल्सो वेरीज एट डिफरेंट पीरियड्स. अब जो पॉपुलेशन साइज है
it mainly depends upon some factors. It mainly depends upon some factors. Number one, population size. It depends upon the food availability. Number second, this population size, it depends upon the predation pressure. अगर हम एक और बात कहेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशंस. हाँ, अगर फूड अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होगी, वी विल सी जो पॉपुलेशन होगी वो फ्लोरिश हो जाएगी. अगर प्रीडेशन प्रेशर ज़्यादा होगा, देन वी विल सी जो पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज इट मे डिक्रीज. वेदर कंडीशन, अगर वी हैव गॉट द फेवरेबल वेदर कंडीशन, देन द पॉपुलेशन विल फ्लोरिश. इफ वी हैव गॉट द अनफेवरेबल या एक्सट्रीम्स ऑफ द वेदर कंडीशन, एट दैट टाइम ऑल्सो वी विल सी जो पॉपुलेशन साइज होगी वो कम होती जाएगी. कभी कभार हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज होगी इट विल बी वेरी लो ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस. वो पॉपुलेशन साइज उस वक्त हमारी क्या होगी, वेरी लो. दूसरी बात हम कहेंगे इट विल बी वेरी मच हाई ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन साइज जो होगी वो बहुत अच्छी खासी होगी. ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशन पॉपुलेशन बहुत लो होगी, एंड वी विल फाइंड जो पॉपुलेशन साइज होगी वो वेरी मच हाई होगी ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस. लेकिन दूसरी टर्म अब हम इसके साथ आ जाती है, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन एंड डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज पर यूनिट एरिया. सुधा पर यूनिट एरिया कि एक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एरिया एज 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में कितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कितने इंडिविजुअल्स रह सकते हैं. रखा याद, या 1 मीटर में कितने प्लांट, 1 स्क्वायर मीटर में रादर में कितने प्लांट्स पाए जाते हैं. हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज PD by is equal to n by s, where this PD it is the population density. What is this n? N is the number of individuals. s जो है, what is this s? S is simply the number of unit areas. सो वी विल सी दिस पॉपुलेशन डेंसिटी. इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज पर यूनिट एरिया, and it can be simply calculated as mathematically. It can be mathematically अगर हम बात कर लेंगे, PD is equal to n by s, where PD is the population density, n is the number of, s is the number of unit areas. now अब जो population है किसी एरिया की, it can be described, किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी एरिया की, किसी भी what we call as the region की, it can be described on the basis of 3 parameters. 3 पैरामीटर्स हमारे पास है. फर्स्ट, नंबर 1, नंबर एंड काइंड ऑफ individuals of a species. number 2, time. C हम बात कर लेंगे ए गिवन एरिया कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी एरिया की, इट कैन बी, इट डिपेंड्स अपॉन रादर,
अगर हम कहेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी एरिया की, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री गिवन पैरामीटर. नंबर वन, नंबर ऑफ काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, कितने स्पीशीज पाए जाते हैं. सेकंड वन, किस मखसूस टाइम पर, दैट्स अ स्पेसिफिक टाइम. एंड थर्ड, एरिया हमारे पास कितना है. अब सिंपली अगर हम बात कर लेंगे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट सिंपली शोज अस दैट, इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है, सक्सेस ऑफ ए स्पीशीज इन ए गिवन एरिया. ये एक स्पीशीज की सक्सेस बता रहा है कि वेदर इट हैज अडेप्टेड इटसेल्फ इन एन in that area, whether it has flourished in that area. If it has flourished, then we will see population density जो होगी वो अच्छी खासी होगी. अगर it has not flourished, it has not succeeded, then we will see that the population density is very much low. So population density, it simply reflects the success of a species in any given area. हमारे पास एक और पैरामीटर भी है, what we have to discuss. We have got one more parameter. What is that parameter? Let us try to discuss that. That is number 5. What is that जो हमारे पास है, that is age, sorry हम कहेंगे population growth. Population growth, important. How we can define the how population growth is indicated? It is somewhat mathematical. Population growth अगर हम बात कर लेंगे, it is indicated by the changes in population density, कि population density में इसमें changes क्या क्या आ गई. अब हम एक डायग्राम बनाएंगे. What are the various indicators that helps us in changing the population density in terms of time? Population density indicates simply whether the population is flourishing or whether the population is declining. Now there are 4 processes rather on which the population density of an area depends. First one, what is this? अब मैं 4 वो बताऊंगा. फर्स्ट वन, दैट इज हम लिखेंगे पहले यहाँ पर इमिग्रेशन, फिर हम लिखेंगे दूसरा बर्थ रेट, थर्ड हम लिखेंगे इमाइग्रेशन, फोर्थ मैं बात कर लूँगा डेथ रेट की. गोया these are the 4 different processes on which the population density of an area depends. रखा यार. So we can say what are those 3-4? These are the immigration and birth rate which increase, which add up to the population, whereas this immigration and the death rate, they helps us in losing, they decrease the population size. Now this population growth, हाँ ये एक बात याद रखना कि अगर हम कहेंगे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल हमारे पॉपुलेशन में एडअप हो जाते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन होगी that will be the positive growth. पॉजिटिव ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल जो होते हैं दे आर बीइंग एडेड अप, इंडिविजुअल्स आर बीइंग एडेड अप. अब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ये कभी नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है. नेगेटिव ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल जो होते हैं दे आर, उनसे हम क्या कहते हैं, दे आर बीइंग व्हाट वी विल सी इंडिविजुअल, दे आर बीइंग लॉस्ट, रादर दे आर बीइंग लॉस्ट. कभी कभार हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी दैट विल बी द जीरो ग्रोथ. जीरो ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि बोथ व्हाट वी विल सी, जो पॉपुलेशन जो होगी ये स्टेशनरी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी इट विल बी, अगर हम कहेंगे व्हेन बोथ दैट इज द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट दे आर इक्वल, बर्थ रेट एंड
डेथ रेट या सीधा बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। उस वक्त भी हम क्या कहेंगे, जब बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर होंगे, एट दैट टाइम जो पॉपुलेशन साइज होगी, जो पॉपुलेशन वो स्टेशनरी होगी, सो वी विल हैव गॉट द जीरो ग्रोथ। मैथमेटिकली अगर हम बात कर लेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की, अगर हम बात कर लेंगे population growth is equal to immigration plus birth rate minus immigration minus death rate. In short, what we will see, we can write this it like this, we can like this, b plus I minus e minus d. Now what are these terms, what did they signify? This nt अगर हम बात कर लेंगे, it is simply the final population size. What is this? It is the initial population size. What is this b? It is the birth rate. What is this I? It is the immigration, कितने बंदे इसमें नए आ गए. What is this? It is immigration, कितने बंदे इस बाहर चले गए. And this is the death rate. अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर हम बात कर लेंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट जो होते हैं, जो नेटलिटी और जो मोर्टेलिटी होती है, बर्थ रेट और डेथ रेट, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ. लेकिन अब ये हमारे पास जो है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन जो ये हैं, दे ओनली कंट्रीब्यूट ओनली इन ए स्पेसिफिक कंडीशन, इन ए स्पेशल कंडीशंस लाइक कॉलोनाइजेशन ऑफ ए हैबिटेट, वहाँ पर ये हो जाता है. एक और हमारे पास है विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलेशन. व्हाट इज दैट? वी विल सी. वी हैव गॉट दिस सेक्स रेशियो. Sex ratio. This is the sixth point. Sex ratio. Sex ratio simply means number of females in a population per thousand of males. Goya. Number of females in a population per thousand of males is called as sex ratio. This is simply, and it is the main which हमारे पास हमारे population का ratio बताने में मदद कर लेता है. एक और हमारे बात है, that is the age ratio. Age ratio में हम क्या पढ़ते हैं? On the basis of reproductive period. On the basis of reproductive period, जो भी individuals हैं within the population, they can be grouped into 3 groups. They can be categorized into 3 groups on the basis of reproductive period. First one, that is the pre-reproductive phase. सेकंड जो हमारे पास है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज. थर्ड जो हमारे पास आता है, दैट इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. ऑन द बेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, व्हाट वी विल हैव सी, जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के, they can be categorized into 3 groups: pre-reproductive phase and post-reproductive phase. प्री रिप्रोडक्टिव फेज अगर हम देखते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द बिलो 18 ईयर्स. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेंगे,
अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर लेंगे, इट इज़ फ्रॉम अबो 18 years to 45 years, 45 to 50 years. या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव मीन्स अबो 50 years. So we can say on the basis of their reproductive period, जो individuals होते हैं किसी भी population में, they can be grouped into three categories, three groups. फर्स्ट वन प्री रिप्रोडक्टिव फेज, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे बिलो 18 ईयर्स. फिर हम देखते हैं सेकंड वन, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज बिटवीन 18 ईयर्स टू 50 ईयर्स. हाँ, यहाँ पर हम 14 ईयर्स तक भी रह सकते हैं, और यहाँ पर हम above 14 years to 55 years, and post reproductive phase above 55 years हम रख सकते हैं. So these are the various what we called as the reproductive these are the various phases in the population on the basis of their reproduction ability. This is all for today. Rest we will study tomorrow. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.